So hello everyone, I hope you are in good health and preparing well for your examination. In today's video, we will be seeing, answering and understanding a few objective questions on physics. It's chapter 1 titled Forces, Turning Forces and Uniform Circular Motion. So this video has been specially made for the students who are appearing for their class 10th first semester examination. Of course, the questions shall also be useful for the other students who are appearing in some other competitive examinations. So prior to starting the objective questions, I shall tell you that as questions appear on your screens, you should try answering the same in 5 seconds. At the end of the video, you can share your marks in the comment section. Then of course, I'm here to discuss the answers in detail. I shall try discussing the same in Hindi as well as English language, so don't worry. So let's begin. The first question is, a rigid body when acted upon by a force can have A. Linear motion, B. Rotational motion, C. Both A and B, और D. None of these. एक रिजिड बॉडी है. रिजिड बॉडी वो होता है जिसका शेप चेंज नहीं होता है अगर आप उस पर फोर्स लगाते हैं, जैसे कि कोई पेन हो गया. और दूसरा है फ्लेक्सिबल बॉडी, जैसे कि रबर बैंड होता है. तो एक रिजिड बॉडी है, जब उस पर आप बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उस पर क्या होता है? ए. लीनियर मोशन होता है, बी. रोटेशनल मोशन होता है, सी. दोनों ही लीनियर मोशन या रोटेशनल मोशन दोनों ही हो सकते हैं, या डी. इनमें से कुछ नहीं होगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. The correct answer is both A and B. Let's see how. Okay, so this is a rigid body. It does not change its shape. When we apply force, it can move in linear way, in this way also the same thing, or it can rotate in this way. ठीक है, वो घूम भी सकता है, वो linear way में move भी कर सकता है. So your correct answer was C, both A and B. The CGS unit of moment of force is A. Dyne-meter, B. Newton centimeter, C. Newton meter और D. Dyne centimeter. आपको CGS यूनिट बताना है मोमेंट का. ऑप्शंस आपके सामने हैं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. द करेक्ट आंसर इज D. Dyne centimeter. So moment of force is what? Moment of force or torque means the measure of tendency of the force to cause the body to rotate about a point of axis. टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स वो होता है जो एक फोर्स के कारण उत्पन्न होता है, उससे एक टेंडेंसी, घूमने की टेंडेंसी होती है. ओके, आप फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट अगर घूमने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उस पर हम टॉर्क लगा रहे हैं. CGS unit of force is dyne. CGS unit of distance is centimeter. So what is torque? Torque is force multiplied by perpendicular distance. So unit is dyne multiplied by centimeter, or dyne centimeter is your correct answer. Okay, force का यूनिट क्या होता है? डाइन होता है CGS यूनिट में, और perpendicular distance या डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है CGS यूनिट में? सेंटीमीटर होता है. जब उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको मिलता है डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर मिलता है. ओके, विद दिस शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉय ड्रैग्स अ लोड L along horizontal plane AB by applying a force F. So the boy does no work, some positive work, C. negative work, और D. none of these. तो एक बच्चा है, एक बॉडी है L, जिसे हम लोड का नाम दे रहे हैं, उसे वो पुल करने की कोशिश कर रहा है. कहाँ पर? ज़मीन पर. एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, AB है, उस पर पुल करने का कोशिश कर रहा है. क्या वो बच्चा, ऑप्शन ए, कोई वर्क नहीं करेगा, ऑप्शन बी, कुछ पॉजिटिव वर्क करेगा, सी, कुछ नेगेटिव वर्क करेगा, ऑप्शन डी, कुछ भी इनमें से नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. द करेक्ट आंसर इज बी, सम पॉजिटिव वर्क. लेट्स सी हाउ. आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा था. योर क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस. सो देयर वाज सम लोड and the boy was applying some force F
Okay, it is moving along the line AB, right? It's a horizontal plane. You can assume it as some ground. So to make the thing simpler, I have taken an analogy. You can see the image below. A boy is pulling a cart. You can see the direction of force, and the trolley or cart is moving on the horizontal plane AB. Now you tell me, the boy is pulling the load in one direction and the load is moving in the same direction. So he is doing some positive work. बच्चा जो है वो जो फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ और ट्रॉली भी उसी की तरफ मूव कर रहा है. तो जब फोर्स और मोशन का डायरेक्शन एक होता है तो पॉजिटिव वर्क कहलाता है. ओके, द ऑप्शन बी, सम पॉजिटिव वर्क, इज करेक्ट. ओके, he will do some work because motion is happening. I think it is clear. So shall we move on to the next question? The direction of clockwise movement is along the axis of rotation. Option A inwards, option B outwards, option C either A or B, और option D none of these. एक clockwise movement लग रहा है और मोमेंट का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है मोमेंट का, वो एक्सिस के तरफ है. ठीक है, एक्सिस के अलोंग है. तो उसका दिशा कहाँ होगा? इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, बी आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. द करेक्ट आंसर इज ए. इट शुड बी ए. वाई? बिकॉज मोमेंट हैज़ डायरेक्शंस. ओके, मोमेंट का डायरेक्शन होता है. कैसे निकालते हैं मोमेंट का डायरेक्शन, ये हम अभी देखते हैं. Okay, here you have two clocks. Okay, so one of the arrows show anti-clockwise direction and the other arrow shows clockwise direction. यहाँ पे दो घड़ियाँ हैं. एक जो आपको एरो नज़र आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है, और एक डायरेक्शन घड़ी के साथ घूम रही है. जो साथ घूम रही है उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, जो घड़ी के विपरीत घूमती है उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं. तो पहला सिनेरियो देखते हैं. अगर हमारा घड़ी के साथ घूम रहा है, इफ़ इट इज़ मूविंग क्लॉकवाइज, योर थंब इज़ पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. इफ इट इज़ मूविंग along anti-clockwise direction, the thumb is pointing outside. Okay, so your answer is inwards. Okay, clockwise movement, the first scenario, it is clockwise movement. Your thumb is moving downwards, so your movement is also going downwards. On applying a force on a pivoted body, its direction of rotation depends on option A point of application of the force, B the direction of force, C both A and B, D none of these. किसी पिवोटेड बॉडी में अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो घूमता है, तो उसका घूमने का जो दिशा है वो किस पर निर्भर करेगा? ऑप्शन ए, आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, बल कहाँ लगा रहे हैं. ऑप्शन बी, उस पर निर्भर करेगा कि फोर्स का दिशा क्या है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है. ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, the correct answer is C, both A and B. So, if you are applying force, the direction of rotation depends upon both the point of application of force as well as the direction in which you are applying the force. तो अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और वो घूमता है, तो घूमने का जो दिशा है वो इस पर निर्भर करेगा कि आप किस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं और किस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं. लेट्स सी हाउ. सो दिस इज अ डोर and the option was where you apply the force, the point at which force is applied. So you can either apply the force on the hinge or on the handle of the door. Okay, there are two possibilities where you can apply the force, either on the hinge or on the door. Can you tell me in which scenario the door will rotate? When you will apply force on the hinge or on the handle? Of course on the handle, right? तो आपके पास एक दरवाज़ा है, इस पे निर्भर करेगा कि आप किस पॉइंट पर लोड को या फोर्स को लगा रहे हैं.
आप हिंज को हिंदी में कब्जा बोलते हैं शायद, तो अगर उस कब्जे पे आप फोर्स लगाएंगे तो वो क्या दरवाज़ा घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। लेकिन अगर वही फोर्स आप हैंडल वाले पॉइंट पे लगाते हैं तो दरवाज़ा ज़रूर घूमेगा। तो एक पॉइंट तो क्लियर होता है। आई थिंक वन पॉइंट इज़ क्लियर दैट in which direction the rotation will happen only with the application of force in certain point। हर जगह पर फोर्स लगाने से दरवाज़ा नहीं घूम सकता, किसी पॉइंट्स पे ही लगा के आप दरवाजे को घुमा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट वॉज इन विच डायरेक्शन द फोर्स इज़ बीइंग अप्लाइड। किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे तो दरवाज़ा घूमेगा। अगर आप पुश करते हैं तो दरवाज़ा उल्टी तरफ खुलेगा, अगर आप पुल करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे तो दरवाज़ा आपके तरफ में घूमेगा। तो डायरेक्शन डिपेंड करता है आप कहाँ फोर्स लगाते हैं। ओके, इफ़ यू ट्राई टू पुश द डोर इट विल ओपन ऑन द अदर साइड, इफ़ यू पुल द डोर इट विल ओपन ऑन योर साइड। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन in which direction you are applying the force. Okay, I think I have made myself clear. You too are enjoying the session. Okay, shall we move on to the next question? The next question says two forces each of 5 Newton act vertically upwards and downwards respectively on the two ends of a uniform meter rule which is placed at its midpoint as shown in the diagram. The resultant moment of these forces about the midpoint is option A 5 Newton meter in clockwise direction, option B 5 Newton meter in anti-clockwise direction, option C 10 Newton meter in clockwise direction and option D 10 Newton meter in anti-clockwise direction. तो यह क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास दो फोर्सेस लग रहे हैं 5 न्यूटन के। ओके, एक 5 न्यूटन आपके ऊपर दिशा में लग रहा है और एक 5 न्यूटन आपको नीचे दिशा में लग रहा है। आपके पास एक मीटर स्केल है। मीटर स्केल मतलब उसका जो लंबाई होगा वो 1 मीटर का होगा, उसको आपने बीच से पकड़ रखा है। सो इट इज़ हिंज्ड एट द सेंटर। तो इसके बीच जो हिंज्ड पॉइंट है उसके अबाउट आपको मोमेंट निकालना है। वो कितना होगा? ऑप्शन ए 5 न्यूटन मीटर घड़ी के दिशा में, ऑप्शन बी 5 न्यूटन मीटर घड़ी के विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी 10 न्यूटन मीटर 10 न्यूटन मीटर घड़ी के दिशा में, ऑप्शन डी 10 न्यूटन मीटर घड़ी के विपरीत दिशा में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द करेक्ट आंसर इज बी 5 न्यूटन मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट्स सी हाउ। सो दिस वाज योर मीटर स्केल। इट्स लेंथ इज 1 मीटर and it is hinged at the center. Okay, so from the hinge point the first force on the right hand side is located at 50 centimeter. Okay, and the second force on the left hand side is also located at 50 centimeter. I think you know that 100 centimeter means 1 meter and it was said in the question that it is a meter scale. Its length is 1 meter. So 100 centimeter, 50 centimeter on one half, 50 centimeter on the other half. So I have written that which is placed at its midpoint. It means it is hinged at its midpoint, and a meter rule means the total length is 1 meter only. So your answer is net moment should be the first force will create 5 Newton multiplied by 50 centimeter. The second force will also apply 5 Newton at 50 centimeter. Why am I adding this? Why have I placed a plus sign between these two? 5 Newton multiplied by 50 centimeter plus 5 Newton plus 50 centimeter. Why? Because they are both trying to rotate the scale in one particular direction, that is anti-clockwise direction. I think I have shown the direction in which it will rotate. Okay, you can take a pen and you can try this experiment. Hinge it in the center and try to apply two forces. Okay, it will move in the anti-clockwise direction. So 5 Newton multiplied by 50 centimeter is 0.5 meter. Okay, so 5 Newton multiplied by 0.5 meter plus 5 Newton multiplied by 0.5 meter, it gives you 5 Newton. Okay, you have taken 5 Newton as common. 0.5 meter plus 0.5 meter, which is equal to 5 Newton
मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, यू गेट 5 न्यूटन मीटर। 1 मीटर का आपके पास स्केल है, 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक आपके दाएं हाथ में 5 न्यूटन का और एक आपके बाएं हाथ की तरफ 5 न्यूटन। 1 मीटर का स्केल है तो मिडिल पॉइंट से 50 सेंटीमीटर दाएं हाथ की तरफ और 50 सेंटीमीटर बाएं हाथ की तरफ आपकी दूरी होगी हिंज पॉइंट से। तो नेट मोमेंट होगा 5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 50 सेंटीमीटर ऑन राइट हैंड साइड फोर्स, 5 न्यूटन multiplied by 50 centimeter, this is due to the right hand force, plus 5 Newton multiplied by 50 centimeter, this is due to the left hand force. So you are adding it, आप उसे ऐड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों का टेंडेंसी है एक ही डायरेक्शन में घुमाने का, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाने की टेंडेंसी है। तो आपका फाइनली आंसर जो आएगा वो 5 न्यूटन मीटर आना चाहिए। The perpendicular distance between the point of application of force and the turning point is 1.75 meter. When a force of 80 Newton acts on the rigid body, the moment of force is, आपको दूरी दे रखी है और आपको हिंज पॉइंट और जहाँ फोर्स लग रहा है उसका दूरी दे रखा है 1.75 मीटर और आपको फोर्स का मान दे रखा है 80 न्यूटन्स। आपको मोमेंट निकालना है। Your time starts now. The correct answer is C. Let's see how. Okay. So you were given a body. It was hinged, and from the hinge point, the length of moment arm or the distance from the hinge point to the point where force is being applied is 1.75 meter. Force is 80 Newton, so you have to find out the moment. Moment of force is given by force multiplied by perpendicular distance of the force. Okay, so it is 80 Newton multiplied by 1.75 meter, which is 140 Newton meter. आपका जो बॉडी था वो एक तरफ हिंज्ड था और जहाँ आपका फोर्स लग रहा था हिंज पॉइंट से फोर्स तक की दूरी 1.75 मीटर दिया गया था। मोमेंट का फॉर्मूला होता है बल, उसे गुणा करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, जो आएगा आपका 140 न्यूटन मीटर। दिशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। आई थिंक यू आर क्लियर विद द डायरेक्शन, इट विल रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ मोमेंट ऑफ 10 न्यूटन मीटर ऑन अ रिजिड बॉडी। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द टर्निंग पॉइंट इज। इस क्वेश्चन में आपको 50 न्यूटन का फोर्स दे रखा है और मोमेंट दे रखा है 10 न्यूटन मीटर का। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द करेक्ट आंसर इज ए 0.2 मीटर। लेट्स सी हाउ। तो आपको दे रखा था फोर्स, आपको दे रखा था मोमेंट। मोमेंट का आप फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द हिंज। Okay, so you can find the distance y. So perpendicular distance is also known as the moment arm. तो moment arm का अर्थ होता है हिंज से जहाँ फोर्स लग रहा है वहाँ तक का perpendicular distance. With this, shall we move on to the next question? The next question is, the diagram given alongside shows a force F is equal to 5 Newton acting at a point A produces a moment of force of 6 Newton meter about point O. The diameter of the wheel is. आपको एक सर्कल दे रखा है, उसका सेंटर O है, किसी पॉइंट A पर बल लग रहा है या फोर्स लग रहा है। फोर्स का मान दे रखा है 5 न्यूटन, नेट मोमेंट का मान दे रखा है 6 न्यूटन मीटर अबाउट O। अबाउट O का अर्थ है यू कैन कंसिडर इट एज अ हिंज पॉइंट, आप उसे हिंज पॉइंट मान सकते हैं। आपको व्हील का डायमीटर निकालना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द करेक्ट आंसर इज बी। लेट्स सी हाउ। So this was your body, circular body hinged at O, force is being applied at A. So what is the distance between O and A? The distance between O and A is the moment arm or the perpendicular distance between hinge and A point
of application of force A or the y I have shown here, you can apply the formula for the moment, force multiplied by the perpendicular distance, you get the answer 1.2 meter. So the distance between O and A is 1.2 meter. Okay, so what was asked in the question? The diameter. So O and A is the radius, diameter is twice the radius, so answer should be 1.2 multiplied by 2, that is 2.4 meters. सर्कल था. मोमेंट आर्म आपका है y, मोमेंट आर्म जो है वो दूरी है O से A के बीच में, क्योंकि आपको बोला गया था आपको O के अबाउट मोमेंट निकालना है, तो O को आप हिंज पॉइंट मान सकते हैं. O से A जो y डिस्टेंस है उसे आप निकाल सकते हैं मोमेंट के फॉर्मूला से. मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आपका y का जो मान आएगा वो 1.2 मीटर आएगा. तो 1.2 मीटर O से A तक का दूरी है, लेकिन आपको बोला गया है डायामीटर निकालने के लिए. डाया जो होता है वो 2 गुना होगा OA का, तो आपका आंसर आना चाहिए 1.2 multiplied by 2, that is 2.4. Shall we move on to the next question? To open and shut a door, we apply the force normal to the door at its handle, which is provided at option A, minimum distance from the hinges, B, maximum distance from the hinges, C, any distance from the hinge, और D, none of these. अगर आपको दरवाज़ा खोलना या बंद करना है तो आप कहाँ पर फोर्स लगाएंगे? आप तो फोर्स हैंडल पर ही लगाएंगे, तो हैंडल का लोकेशन कहाँ होगा? ऑप्शन ए, कब्जे के पास, नियर टू द हिंज. ऑप्शन बी, कब्जे से बहुत दूर, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज. ऑप्शन सी, एनी डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज, कहीं भी आप लगा सकते हैं हैंडल को. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. द करेक्ट आंसर इज बी, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज. लेट्स सी हाउ. तो आपके पास जब दरवाज़ा है तो आप कोशिश करते हैं आपका हैंडल जो है मैक्सिमम दूरी पर रहे, क्योंकि उससे दरवाजे खोलने में आसानी होती है. ओके, मोमेंट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बीइंग इंक्रीज्ड, देयरफॉर द हैंडल इज लोकेटेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट. फॉर्मूले से आप जा सकते हैं, जो मोमेंट होता है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? कब्जे से और हिंज पॉइंट से. तो वो आपका जितना ज़्यादा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, तो मोमेंट उतना ज़्यादा लगेगा, आपको दरवाज़ा खोलने में उतना आसानी लगेगा. यही कंसेप्ट जो है आप, जो आपका टूल्स होता है गाड़ी के पहिए को खोलने के लिए, या फिर आपका कोई भी और दूसरा टूल होता है, जैसे वो प्लायर हो गया, स्पैनर हो गया, ठीक है, बॉटल ओपनर हो गया, तो वो इसी कंसेप्ट पर डिपेंड करते हैं. ओके, so the other devices like the spanner or the pliers or the bottle opener, so they are all based on the same concept. For turning a steering wheel, a force is applied on the rim of the wheel. Option A, at 45 degree. Option B, tangentially. Option C, along the rim. Option D, any of these. अगर आपको गाड़ी का जो हैंडल है, स्टीयरिंग व्हील है, उसे घुमाना है, तो आप फोर्स किस दिशा में लगाएंगे? ऑप्शन ए 45 डिग्री पर लगाएंगे. ऑप्शन बी टेंजेंशियली लगाएंगे. हम देखेंगे कैसे. ऑप्शन सी रिम के ऊपर ही लगा देंगे. ऑप्शन डी कहीं भी आप लगा सकते हैं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. योर आंसर इज बी, टेंजेंशियली. लेट्स सी हाउ. So option A is force should be applied at 45 degrees. Okay, so you have a steering wheel and force is being applied like this. So you are pressing it in 45 degree. Option B is tangentially. So you are trying to apply it tangentially. And option C was force along the rim. So you are pressing the handle. So can you rotate the handle by just simply pressing it? No. ऑप्शन ए जो था आपका वो था 45 डिग्री पे लगाना है, तो इससे भी आप हैंडल को दबा रहे हैं. ऑप्शन बी को देखें, टेंजेंशियल लगा रहे हैं तो वो घूमेगा, आप ऐसे ही हैंडल को घुमाते हैं. ऑप्शन सी जो है आप हैंडल को कम्प्लीटली दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो आपका व्हील नहीं घूम पाएगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ द वीडियो.
So we are trying to press it. Third option. So will it rotate? No. Option B, tangentially, yeah, it is rotating. Option C, 45 degree, it is not rotating. तो इस वीडियो को फिर से देखते हैं. जब आप नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, ऑप्शन सी जो था उससे नहीं घूम रहा है, ऑप्शन बी से घूम रहा है टेंजेंशियली से, ऑप्शन ए जो 45 डिग्री पे लगा रहे हैं उससे भी नहीं घूम रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी इज ऑप्शन ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी, ऑप्शन बी फिक्स्ड पॉइंट बट कैन बी transferred anywhere along the line of action of force, option C fixed point but can be transferred anywhere along the direction of force, option D fixed point but can be transferred anywhere opposite to the direction of force. तो आपका सवाल बड़ा आसान है. पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसी भी रिजिड बॉडी में, जो कि आपका बॉडी ऐसा बॉडी जो अपना शेप को चेंज नहीं करता है, पॉइंट ऑफ एक्शन किसे कहते हैं? क्या वो ऑप्शन ए फिक्स पॉइंट होता है बॉडी पर, ऑप्शन बी फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है जो कि कहीं भी लाइन ऑफ एक्शन के दिशा में कहीं भी आप उसको हिला सकते हैं, ऑप्शन सी एक पॉइंट है आप किसी भी फोर्स के दिशा में आप उसे हिला सकते हैं, ऑप्शन डी फिक्स्ड पॉइंट तो है लेकिन आप फोर्स के विपरीत दिशा में उसे हिला सकते हैं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Your answer is B. It's a fixed point but it can be transferred anywhere along the line of action of force. Okay, let's see the concept of line of action of force and point of action of force. So here it's a body, it's hinged, you can see. The point of action of force is point A and it can move along the dotted line. The dotted line is known as line of action of force. Okay. So in this diagram there is one line of action for these two forces and there is one point of action. So these both forces are acting on the same point, right? So your option which says it's a fixed point but can be transferred anywhere along the line of action of force, it is correct, and this point can move from up to down along the line of action. Okay, तो ये जो आपका बॉडी है इसमें एक लाइन ऑफ एक्शन है और एक पॉइंट ऑफ एक्शन है. आपका पॉइंट ऑफ एक्शन जो है लाइन ऑफ एक्शन के दिशा में ही मूव कर सकता है, कुछ ऐसे. आगे बढ़ते हैं. आप देख सकते हैं ये यू कैन सी देयर इज वन लाइन ऑफ एक्शन बट फोर्सेज आर अप्लाई. ओके, सो वन मोर थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस इज द फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ऑपोजिट डायरेक्शंस. ओके, द फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन. फोर्सेज जो हैं वो विपरीत दिशा में लग रहे हैं उनका, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है. इसमें अगर देखेंगे फोर्सेज का दिशा जो है वो एक है और लाइन ऑफ एक्शन भी एक है, पॉइंट ऑफ एक्शन भी एक है, राइट. सो इन दिस ऑल्सो यू कैन सी द फोर्सेज आर इन सेम डायरेक्शन. देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ एक्शन एंड देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ एक्शन. And the point of action can move along the line of action as it was given in the correct option. Here you see there are two lines of action because the forces are at different locations, right? The forces are acting far away from each other, so there are two lines of action. The forces are in opposite direction, right? One force is moving upward and the other force is trying to move this body downward. So this situation can balance the force but can't balance the moment. How it can balance the force? If the forces are of 10 Newton and 10 Newton, the forces will balance, but the moment arm, since they are different, this will rotate the body. Okay, and this point of action can move along the line of actions in this way. Finally, the scenario is there are two forces which act in the same direction. There are two lines of action and there are 2 points of action, and the rest of the things I have written here, you can read them out. I think I have given you the concept of line of action and point of action. Okay, so with this shall we move on to the next question. दूसरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. The question is the turning effect produced in a rigid body
around a fixed point by the application of force is called. टर्निंग इफेक्ट को आप क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टर्निंग फोर्स, बी मोमेंट ऑफ फोर्स, सी मोमेंट ऑफ कपल और डी नन ऑफ दीज. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. The correct answer is B, moment of force. Next question is, in SI unit, the unit of moment of force is what? SI सिस्टम में आप मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या रखते हैं? ऑप्शन ए न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी डाइन सेंटीमीटर, ऑप्शन सी डाइन मीटर और डी न्यूटन सेंटीमीटर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. द करेक्ट आंसर इज ए न्यूटन मीटर. ओके. The next question is, the moment of couple is mathematically, option A, product of force and perpendicular distance between the two forces, option B, product of both forces and the perpendicular distance between them, option C, product of one force and perpendicular distance between the point of application of force and the turning point, option D, none. इस क्वेश्चन में आपको पहली बार कपल का कंसेप्ट दिया गया है. तो एक कपल होता क्या है और एक कपल का मोमेंट को आप मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ऑप्शन ए, किसी एक फोर्स को लेते हैं और दो फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ऑप्शन बी, आप दोनों ही फोर्सेस को लेते हैं और उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं. ऑप्शन सी, आप एक फोर्स को लेते हैं और आप हिंज पॉइंट और उस फोर्स की दूरी तक को आप मल्टीप्लाई करते हैं. या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. द करेक्ट आंसर इज ए, प्रोडक्ट ऑफ वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. लेट्स सी हाउ. सो इट्स अ कपल. डू यू थिंक इट्स अ कपल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कपल? कपल का परिभाषा होता क्या है? सो द कपल इज डिफाइंड एज टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन टू अपोजिट डायरेक्शंस. उनका फोर्सेस का मान सेम होना चाहिए. अगर 10 न्यूटन लग रहा है तो 10 न्यूटन लग रहा है, लेकिन ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए. एक नीचे लग रहा है तो एक ऊपर लगना चाहिए. तो क्या सही है? गलत है, क्योंकि दोनों ही नीचे की तरफ लग रहे हैं. तो आपका कपल अब बना. नाउ द कपल इज फॉर्म्ड. सो दिस कपल विल ट्राई टू रोटेट द बॉडी. तो ये कहा गया है ऑप्शन ए जो था, एक फोर्स और दोनों फोर्स के बीच का जो दूरी है उसका मल्टीप्लिकेशन आपको कपल देता है. सो द कपल वाज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. सो दिस इज अ कपल बिकॉज two forces of equal magnitude, that is 5 Newton, are opposite in nature, right? One is moving upwards and one is trying to move the object downwards. So it is generating a couple. So net moment is 5 Newton multiplied by 50 centimeter plus 5 Newton multiplied by 50 centimeter. Why are we multiplying? Why are we adding them? Because the nature of rotation is same. Both the forces are trying to rotate it in anti-clockwise direction. So 5 Newton multiplied by 0.5 meter plus 5 Newton multiplied by 0.5 meter. You take 5 Newton as common and in the bracket you have 0.5 meter plus 0.5 meter, or you get 5 Newton multiplied by 1 meter. So are you getting this? It's one force, that is 5 Newton multiplied by the distance between the two forces, that is 1 meter. आपने एक ही फोर्स लिया है 5 न्यूटन का और टोटल डिस्टेंस जो है 1 मीटर का दोनों फोर्सेस के बीच में उसे आपने लिया है. तो इससे आपका पूरा का पूरा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाता है कि जो कपल का जो मोमेंट होता है वो किसी एक फोर्स और दोनों फोर्स के बीच का जो दूरी है उस पर डिपेंड करता है. Shall we move on to the next question? The condition of equilibrium is option A, the resultant of all the forces acting on the body should be 0. Option B, the resultant moment of all the forces acting on the body about the turning point should be 0. Option C, both A and B. Option D, none of these. So equilibrium condition क्या होता है? आपको नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए, केवल वही होना चाहिए. ऑप्शन बी, आपका जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो 0 होना चाहिए.
ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। अगर फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स मस्ट बी ज़ीरो एंड द नेट मोमेंट शुड ऑल्सो बी ज़ीरो। अगर आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स भी ज़ीरो होना चाहिए और नेट मोमेंट भी ज़ीरो होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is acted upon by two unequal and opposite forces along different lines of action of force. The body will A. Produce only rotatory motion. Option B. It will produce only translatory motion. Option C. It will produce both rotatory and translatory motion. Option D. It won't produce any effect. ठीक है, आपके पास दो फोर्सेस हैं जिनका क्वांटिटी अलग अलग वैल्यूज़ है। हो सकता है एक 5 न्यूटन का हो, एक 10 न्यूटन का हो। तो दोनों अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं। एक ऊपर लगेगा तो एक नीचे लग सकता है और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग है। मैंने दिखाया था पहले कि लाइन ऑफ एक्शन होता क्या है और लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये बॉडी का प्रतिक्रिया कैसा रहेगा? क्या ये ऑप्शन ए क्या ये घूमेगा? ऑप्शन बी क्या ये बस आगे की तरफ सीधा सीधा चलेगा? ऑप्शन सी ये घूमेगा भी प्लस सीधा सीधा भी चलेगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी, इट विल मूव एज वेल एज रोटेट। लेट्स सी हाउ। सो हियर यू हैव वन बॉडी, it is acted upon by two unequal forces, one of 10 Newton and the other of 20 Newton. Thus the forces are of different magnitude. You have a net of 10 Newton force in upward direction. So you have 20 Newton force in upward direction and 10 Newton force in downward direction. So what is the difference? 10 Newton. So this extra 10 Newton will move the body upwards. That is, it will make it translate. It will make it move forward. And since 10 Newton force, remaining 10 Newton force of F2 and F1 will try to rotate the body. It will form a couple, right? I think we have explained you what a couple is. So this 20 Newton in F1 can be split into two parts, 10 Newton plus 10 Newton. So 10 Newton will form a couple with F2 and it will try to rotate the body, and the other 10 Newton, that is extra 10 Newton, will try to translate the body. ठीक है, आपके पास ये बॉडी है, इसमें अनइक्वल फोर्स लग रहा है, एक 20 न्यूटन अपवर्ड, एक 10 न्यूटन डाउनवर्ड। सो नेट फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। कितना? 10 न्यूटन एक्स्ट्रा है, तो 10 न्यूटन का फोर्स इसे आगे की तरफ धक्का देगा। क्या ये बॉडी एक कपल भी बना रहा है? हाँ, बना रहा है। कैसे? 10 न्यूटन नीचे लग रहा है और 10 न्यूटन ऊपर भी लगेगा। ए पॉइंट पे जो F1 फोर्स है इसे ऊपर की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा ऑप्शन, और F2 जो है इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ, F1 जो है इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ घुमाएगा और ऑप्शन और फोर्स F2 भी इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, तो ये बॉडी घूमेगा भी। तो करेक्ट आंसर जो है वो है कि ये बॉडी आगे की तरफ भी मूव करेगा और घूमेगा भी। सो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। दिस 20 न्यूटन कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन। ओके, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वे that there are two forces. One force is F1 whose magnitude is 20 Newton and the other force is F2 whose magnitude is 10 Newton. What is the difference between the two? 10 Newtons. You will have a net of 10 Newton. When you subtract it, you will get 10 Newton in upward direction. So this extra 10 Newton will try to translate it. It will move the body in upward direction. How will it rotate? Okay, so the 20 Newton can be broken up into two parts, 10 Newton plus 10 Newton. So the 10 Newton will form, the 10 Newton from F1 will form a couple with 10 Newton of F2. So this couple will try to rotate the body. Okay, तो आपके पास 20 न्यूटन जो है वो ऊपर की दिशा में लग रहा है और 10 न्यूटन जो है आपको नीचे की दिशा में लग रहा है। तो एज अ होल आपको 10 न्यूटन का फोर्स जो है ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, इससे जो बॉडी है वो ट्रांसलेट होगा। अब बॉडी घूमेगा कैसे? तो आप देख सकते हैं कि F2 का जो 10 न्यूटन है वो नीचे की तरफ लग रहा है और F1 का जो 10 न्यूटन है ये ऊपर की तरफ भी लग रहा है, जिससे ये कपल फॉर्म कर रहा है।
कपल, जिसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस दे फॉर्म अ कपल। तो ये कपल जो है ये इस बॉडी को रोटेट भी करेगा। तो आपका करेक्ट आंसर है बोथ ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन इनमें आएगा। Shall we move on to the next question? A body F acts on a rigid body capable of turning around a fixed point. The moment of force depends upon what? Option A, magnitude of force. Option B, magnitude of perpendicular distance between the point of action of the force and the turning point. Option C, both A and B. Option D, none of these. तो आपके पास एक फोर्स है जो कि एक टर्निंग मोमेंट भी क्रिएट कर सकता है किसी हिंज पॉइंट के अबाउट। तो ये जो मोमेंट लग रहा है, तो ये आपका फोर्स के वजह से जो मोमेंट लग रहा है, जो टॉर्क लग रहा है, वो किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन ए, फोर्स के ऊपर। ऑप्शन बी, फोर्स और टर्निंग पॉइंट जो हिंज पॉइंट है उनके बीच का दूरी पे डिपेंड करता है। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता है। ऑप्शन डी, किसी पे नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी. It depends upon both force and perpendicular distance between the force and the hinge point. Okay, I think I have shown you this many times. So there is a hinge point, the black dot, and there is a point of application of force, point A. So the moment will depend upon the force F1 also and the moment arm. The moment arm means the distance between the hinge point and the point of application of force. Okay, तो मोमेंट जो है आपका फोर्स पे भी डिपेंड करता है और मोमेंट आर्म या फिर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हिंज और फोर्स जहाँ अप्लाई हो रहा है उस पॉइंट के बीच में पर भी निर्भर करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ क्रिकेट बॉल इज एट ऑप्शन ए एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर, ऑप्शन बी इट्स बॉटम टचिंग द ग्राउंड, ऑप्शन सी इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट और ऑप्शन डी एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस। तो एक बॉल है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहता है? क्या उसके ज्योमेट्रिक सेंटर के बीच में रहता है? ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब उस बॉल के बिल्कुल बीचों बीच रहता है। ऑप्शन बी, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉल्स और ग्राउंड जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ टच करता है बॉल ग्राउंड को, उस पॉइंट पे होता है। ऑप्शन सी, बॉल के बिल्कुल ऊपर होता है, सीट्स पर। ऑप्शन डी, कहीं भी सरफेस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Answer is option A, its geometric center. So here's your ball and in the center of the ball you have its center of gravity. ठीक है, एक बॉल है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बीचों बीच होता है। Okay, moving on to the next question. A body is describing a uniform circular motion. Which of the following quantities are constant? Option A, speed is constant. Option B, acceleration is constant. Option C, velocity is constant. Or option D, speed as well as acceleration is constant. कोई भी एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, उसमें इनमें से क्या एक समान रहता है? क्या स्पीड समान रहता है? क्या एक्सेलरेशन उसमें हमेशा एक ही समान होता है? ऑप्शन सी, क्या उसका वेलोसिटी जो है वो एक ही समान होता है? या ऑप्शन डी, स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों ही उसका कांस्टेंट या समान रहता है थ्रू आउट द मोशन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द करेक्ट आंसर इज ए, स्पीड is constant. Let's see how. So here's the body, it's undergoing a uniform circular motion. Okay, when a body undergoes a uniform circular motion, its speed is constant. It will move around the circular path, it will move along the circular path in with a uniform speed, but the velocity will change. Why? Velocity depends upon the direction also. So since it is moving in a circular way, it's changing its direction. It means the velocity is not constant, it is changing. Also, there is a force which is acting towards the center. It is known as the centripetal force. The magnitude of the centripetal force is constant, but its direction is changing. How? See, when the body will move upward, after rotating, if the body reaches the topmost position, its direction of the force will be downwards. So the direction of force changes. Okay, तो आपके पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ एक बॉडी है, ठीक है, उसका मास m दे रखा है और सेंटर से उसका दूरी रेडियस r दे रखा है। उस पर वो एक कांस्टेंट
स्पीड से घूमेगा, वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड से घूमेगा, लेकिन उसका वेलोसिटी सेम नहीं होगा। क्यों वेलोसिटी सेम नहीं होगा? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आपको पता है कि वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो यहाँ पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और इस पर एक अंदर की तरफ हमेशा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का एक एक्सेलरेशन भी लग रहा है, ठीक है। इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, या फिर जो फोर्स लग रहा है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। इस सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन जो है वो चेंज होते रहता है। कैसे? अगर ये ऊपर अगर घूमते हुए ऊपर अगर पहुंच गया तो भी इसका फोर्स का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगा। ओके, पहले ये दाएं से बाएं ओर था, अब इसका फोर्स का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी सेम नहीं है, खाली इसका स्पीड जो है वो सेम रहेगा। सो विद दिस शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑप्शन ए, speed of body continuously changes because the direction of motion changes. Option B, velocity of body continuously changes because the direction of motion changes. Option C, motion of the body is accelerated. Option D, both B and C. मैंने ये समझाया है आपको पहले ही, इससे सिर्फ पहले क्वेश्चन पर हमने देखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उससे आप इसका आंसर बता सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time starts now. The correct answer is D, because the velocity of the body changes continuously because the direction of motion changes. And option C is the motion of the body is accelerated. I have said why. Your next question is the position of the center of gravity of the body of given mass depends upon its option A mass, option B density, option C shape, option D none of these. आपका क्वेश्चन यह है कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पर निर्भर करता है? क्या वो मास पर डिपेंड करता है, क्या वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है, क्या वो शेप पर डिपेंड करता है, या इनमें से कोई भी नहीं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द करेक्ट आंसर इज सी, शेप। लेट्स सी हाउ। सो देयर इज अ बॉडी विथ मास m। ओके, आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है, उसका अगर आप शेप चेंज करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। सपोज आप ये जो ट्रायंगल शेप है इसका आप वेट उठा लीजिए, और ये जो आर्क शेप है उसका भी आप वेट उठा लीजिए। दोनों का वेट सेम है, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास जो है वो सेम है। चाहे आप ये ट्रायंगल लें चाहे आप ये आर्क लें, उनका मास समझ लीजिए सेम है। लेकिन आप देख सकते हैं चूँकि इनका शेप अलग है, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन भी अलग अलग है। ओके, suppose you have a triangle and an arc, both of same mass. Okay, let them be m and m. The location of center of gravity changes because of its shape. Okay, so with this shall we move on to the next question. The center of gravity of the body changes if it's option A, if it is deformed, option B, if it is placed upside down, option C, if it changed its position, option D none of these. सवाल आपका ये है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब आपका बदल जाता है? क्या आप उसका शेप को जो है वो चेंज कर देते हैं? ऑप्शन बी, क्या उसे आप उल्टा रख देते हैं? ऑप्शन सी, क्या आप उसका पोजीशन जो है लेफ़्ट से राइट कर देंगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द करेक्ट आंसर इज ए। लेट्स सी हाउ। सो दिस इज अ बॉडी, सपोज अ स्केल, इट इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड। ओके, एक स्केल है जो ग्राउंड पर रखा गया है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बीचों बीच है। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द, सो दिस इज अ स्केल लाइंग ऑन द ग्राउंड, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट इट्स सेंटर, राइट? यू कैन सी इन द डायग्राम। नाउ यू आर ट्राइंग टू डिफॉर्म इट एंड फॉर्म अ सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, सो यू सी द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस। तो आपके पास समझ लीजिए एक स्केल था, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बीचों बीच में होता है। आपने क्या किया, उसका शेप जो है आपने चेंज कर दिया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो लोकेशन है वो बदल गया। पहले बीचों बीच था, अब ये बॉडी के बिल्कुल बाहर भी आ गया। क्वेश्चन इज, अ सॉलिड बॉडी कैन बी बैलेंस्ड बाय सपोर्टिंग एट इट्स, ऑप्शन ए मिड पॉइंट, ऑप्शन बी ज्योमेट्रिक सेंटर, ऑप्शन सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपके पास एक बॉडी है, उसे आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं?
क्या आप जब उसके आप मिड पॉइंट पे पकड़ते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है? ऑप्शन बी, जब आप उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आप उसे पकड़ते हैं तो वो बैलेंस होता है? ऑप्शन सी, जब आप उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जब आप उसको पकड़ते हैं तब वो बैलेंस होता है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The correct answer is C, center of gravity. I think you all have a pen in your hand, okay? So try to balance the pen. So at every point on the pen you won't be able to balance it, okay? But if you put your finger in the center of gravity then you will able to balance the pen, okay? अब अपने हाथों में एक पेन उठा लीजिए और उसे अपने उंगली पर रखकर बैलेंस करने की कोशिश करिए। जब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होगा आपकी उंगली जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होगी तभी आप उस पेन को बैलेंस कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस विद अ सिंपल फिगर। सो इट्स अ रेक्टेंगल, ओके? सपोज इट्स अ सेल फोन, ओके? सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली द ज्योमेट्रिक सेंटर। ऑप्शन ए इज रॉन्ग, इट डज नॉट लाई ऑन द मिड पॉइंट। ये बीचों बीच नहीं रहेगा। वाई? बिकॉज इट मे हैपन दैट देयर इज मोर वेट on the right hand side and there is less weight on the left hand side. Same thing happens with the pen. If the cap is on, you have to move your finger towards the cap to balance your pen, right? You can balance a body if you are giving a support at the center of gravity. I think it is clear. Shall we move on to the next question? If the force rotates a body about the axis passing through the pivot point, this is called the, option A, rotational effect of the force, option B, turning effect of the force, option C, translational effect of the force, option D, none of these. Your time starts now. The correct answer is B, turning effect of the force, okay? The next question is, if a wheel is pivoted at its center and it rotates about its center, it means force is applied at its rim. Option A, normally, option B, tangentially, option C, at 45 degree, option D, none of these. Your time starts now. The correct answer is B, tangentially. I think I have explained this in the previous question. मैंने इस क्वेश्चन को आपको पहले ही बताया है कि अगर किसी रिम को आपको रोटेट करना है तो आपको टेंजेंशियली फोर्स लगाना पड़ेगा। एक वीडियो भी मैंने आपको इस पर बनाकर दिया था। ओके, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट? इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? ऑप्शन ए, 1 kgf मीटर इज इक्वल टू 989 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, 1 kgf मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर। ऑप्शन सी, 1 kgf मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, और नन ऑफ दीज, ओके? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The correct answer is B, 1 kgf meter is equal to 9.8 Newton meter. Let's see how. So 1 kilogram force means 1 kgf. 1 kilogram force. So if 1 kilogram is placed on earth, it will be pulled by a force of 9.8 Newton, right? Why? Because mass is 1 kilo and acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, okay? Due to gravity on earth, I am not talking about the moon, okay? So force is given by mass multiplied by acceleration. Mass is 1 kilo and acceleration due to gravity is 9.8, right? You multiply it and you get 9.8 kg meter per second square. So kg meter per second square is equal to Newton, right? So 9.8 Newton. Hence 1 kgf is equal to 9.8 Newton and 1 kgf meter is equal to 9.8 Newton मीटर्स। तो डेरिवेशन आपको मैंने 1 kgf का यहाँ पे बता रखा है। तो 1 kgf का मतलब होता है 9.8 न्यूटन्स। बस आपको मीटर का मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों साइड्स में। तो 1 kgf मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर, ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ, फोर्स का जो मोमेंट होता है वो क्या होता है? क्या वो स्केलर क्वांटिटी है? क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है? क्या स्केलर भी हो सकता है या वेक्टर भी हो सकता है, या डी, नन ऑफ दीज? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
The correct answer is B, vector quantity. I think I have shown this in question number 2, right? Yes. So I had shown there right hand thumb rule, right? So try to curl your finger in the direction of rotation. So the direction in which your thumb points, it will tell you the direction in which the moment will act. So it's a vector quantity because it has direction. So moment of force has some direction. It is a vector quantity. Okay, the question is the direction of rotation of a body can be changed by option A, changing the point of application of force, option B, changing the direction of force, option C, either A or B, option D, none. ठीक है, कोई बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो रोटेशन का सेंस आप कैसे बदल सकते हैं? क्या उसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है या क्लॉकवाइज घूमना है? तो वो कैसे संभव हो सकता है? ऑप्शन है, क्या आप जहाँ फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स के पॉइंट को आप शिफ्ट कर देंगे तो क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? ऑप्शन ए वो था। ऑप्शन बी था, क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर दें? आप अगर फोर्स पहले ऊपर लगा रहे थे, अब आप नीचे लगा रहे हैं। ऑप्शन सी है आइदर ए और बी। ऑप्शन डी है नाइदर ए नॉर बी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The correct answer is C, both A and B. Okay, you have a body. In the first half, that is your LHS, I will talk about the point of application of force. Okay, this body is hinged at the center. If you apply the force at A, it will rotate the body in anti-clockwise direction, and if you apply the force at B, so your body will rotate in clockwise direction. Hence, it is proved that point of application of force changes the sense of rotation. Okay, so next option was direction of application of force. If you apply the force in downward direction, it will rotate it in clockwise direction, and if you apply the force in upward direction, it will change the sense of direction in anti-clockwise direction. Hence option C is correct. बाएं हाथ की तरफ देखेंगे तो पहला जो हाफ है स्क्रीन का, उस पर बताया गया है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी महत्वपूर्ण है। अगर आप ए पर फोर्स लगाएंगे तो वो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। अगर आप बी पर फोर्स लगाएंगे तो वो घड़ी के दिशा में घूमेगा। और ऑप्शन बी जो था डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर आप फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ रखते हैं तो वो घड़ी के दिशा में घूमेगा, और अगर आप फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखेंगे तो वो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिजिकल बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए मासेस, बी फोर्सेस, सी मोमेंट्स, डी टॉर्क्स। फिजिकल बैलेंस जो जिसे हम तराजू भी कह सकते हैं, वो किस सिद्धांत पर टिका हुआ है? ए मासेस, बी फोर्सेस, सी मोमेंट्स, डी टॉर्क। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Your correct answer is C, moments. Let's see how. So this is a physical balance. It is hinged at the center. On one side you will have weights, on the other side you will have your material which you are trying to weigh. For example, potatoes. You keep on increasing the number of potatoes. If the weight of the potatoes match with that of the weights, it will balance. What is happening here? The weight is providing torque in one direction and your potatoes weight is providing torque in another direction. When they balance, नेट मोमेंट इज़ ज़ीरो। ओके, तो ये आपका एक तराजू है जो बीच बीच हिंज्ड रहता है। ठीक है, एक जगह आप बटखरे को रखते हैं और दूसरी जगह आपको जो सामान लेना आप उसे रखते हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। तो वो जो बटखरे का जो वज़न होगा वो उसे सपोज़ क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो वो जो आलू का वज़न है उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का कोशिश करेगा। जब वो नेट मोमेंट बैलेंस हो जाएगा तो वो आपका तराजू बिल्कुल सीधा रहेगा। द डायग्राम गिवन alongside shows a force F acting at point A such that it produces a moment of force of 20 Newton meter in clockwise direction. The magnitude of force is. तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। आपको मोमेंट आर्म दिया गया है और आपको मोमेंट ऑफ फोर्स दिया गया है, आपको फोर्स बताना है। योर ऑप्शंस आर A 20 न्यूटन, ऑप्शन B 30 न्यूटन, ऑप्शन C 40 न्यूटन, ऑप्शन D 15 न्यूटन। Your time starts now. The correct answer is C. How to solve this? Force multiplied by perpendicular distance gives you moment. Okay, so perpendicular distance has been given as 0.5 meter and moment has been given as 20 Newton meter. You can simply divide it and get the answer
force. Okay, the next question is, in a circular motion, option A, the velocity of a body is variable. Option B, the speed of the body is uniform. Option C, it is accelerated motion. Option D, all of these. Your time starts now. The correct answer is D, all of these. Okay, so I think we have discussed this. This is how, when a body rotates, it is acted by a centripetal force, right, towards the center, but the direction of this force changes as the body rotates. Okay, velocity also changes. Why? Because the direction changes. Okay, only speed remains the same. So option D is correct. With this, we move on to the next question. The rotation is always produced by a, option A, single force. Option B, pair of forces. Option C, either A or B. Option D, neither A nor B. Your time starts now. Correct answer is C, either A or B. How? How you can say that? Suppose if your body is hinged, okay, we have seen many examples in which a body is hinged on one side and you apply force on other side, so it is sufficient for the body to rotate if it is hinged. How to show that if option B is correct? We have seen the concept of couple. Okay, when two forces of opposite nature, if two forces of equal or unequal magnitude, they act in opposite directions, okay, they form a couple and they can rotate the body. Okay, तो हमने देखा था कि अगर कोई बॉडी एक साइड से हिंज्ड है तो एक फोर्स भी काफ़ी होता है उसे घुमाने के लिए. ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने पहले से बहुत सारे पहले हमने इसमें क्वेश्चन हमने ऐसा बहुत सारा सवाल सॉल्व किया है जिसमें एक बॉडी किसी एक पॉइंट पर हिंज था. ऑप्शन बी को अगर देखें तो हमने कपल का कंसेप्ट को देखा था. तो कपल के कारण भी जो है बॉडी रोटेट करता है. कपल कैसे प्रोड्यूस होता है? जब आपके पास दो फोर्सेस होते हैं, पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं. ओके, सो विद दिस वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A body is said to be in equilibrium if, option A, the results of all the forces is equal to 0. Option B, the algebraic sum of the moments of all the forces about a fixed point is 0. Option C, both A and B. Option D, none. ठीक है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका क्या स्थिति होगा? ऑप्शन ए, क्या उस पर पूरे जो फोर्सेस हैं, पूरा जो हर तरफ से जो बल लग रहा है वो ज़ीरो हो जाए. ऑप्शन बी, उस पर जो मोमेंट लग रहा है नेट किसी एक पॉइंट के अबाउट वो ज़ीरो हो जाए. ऑप्शन सी, दोनों हो सकता है. ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. द करेक्ट आंसर इज सी. ओके, you need to learn this. If a body is in equilibrium, the net forces and net moments must be 0. Okay, so आपको ये पॉइंट याद भी रख सकते हैं आप कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है यानी कि उस पर नेट फोर्सेस भी 0 होंगे और नेट मोमेंट्स भी 0 होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज इन, ऑप्शन ए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ऑप्शन बी, डायनामिक इक्विलिब्रियम. ऑप्शन सी, बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम. ऑप्शन डी, नाइदर ए नॉर बी. एक किताब जो है आपके टेबल पर रखा गया है, वो किस तरह का इक्विलिब्रियम में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है. ऑप्शन सी, स्टैटिक में भी है और डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी है. ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. The correct answer is A, static equilibrium. Okay, so I shall discuss with you the concept of equilibrium. Okay, so equilibrium means net force must be 0 and net moments must be 0. In equilibrium we have two classifications. It can be either in static equilibrium or dynamic equilibrium. Okay, so static equilibrium examples are book lying on the table. Okay, it's not moving at all. Net moment is 0, net force is 0 on that body. The body is in state of rest. Okay, it is not moving. The body is in state of rest. Option B was dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium means net force is 0, net moment is also 0 on that body, but it is still moving. For example, I think you have
seen the movie Gravity, right? So if someone is in space, he will continue to move there. He or she will continue to move in the space because no one is there to stop him. Net forces are 0 on him, but he is still moving. So for option B, that is dynamic equilibrium, the body should be moving and net forces and moments must be 0 on that body. Okay, तो आपको अगर मैं इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बताऊं तो इक्विलिब्रियम को आप दो तरीक़े से विभाजित करते हैं. एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है. स्टैटिक इक्विलिब्रियम बहुत ही आसान है. अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो हिल डुल नहीं रहा है, उस पर नेट फोर्स भी 0 है और नेट मोमेंट भी 0 है, तो उसे हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम. दूसरा एग्जांपल डायनेमिक इक्विलिब्रियम. इसमें क्या होगा कि बॉडी जो है वो मूव करता रहेगा. जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट स्पेस पर मूव करते रहता है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, बस वो मूव करते रहता है. नेट फोर्स उस पर 0 है, नेट मोमेंट भी 0 है, लेकिन वो मूव कर रहा है. नेट फोर्स और मोमेंट उस पर 0 है, इसीलिए उसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे. ओके, विद दिस वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, द बॉडी इज सेड टू बी इन ऑप्शन ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन डी नन. तो एक बॉडी है वो एक ही स्थिति में है जो मोशन की स्थिति है. जैसे आपको मैंने बताया था कि आउटर स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट अगर छोड़ दिया है आपने तो वो मूव करता ही चला जाएगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो नेट फोर्स जो है वो 0 लग रहा है. तो उसे क्या कहेंगे आप, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे या डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, या सी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे. ऑफ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. The correct answer is B, dynamic equilibrium, because the body is in state of motion and net forces and moments are 0. Okay, shall we move on to the next question? According to principle of moments in equilibrium, option A, sum of clockwise moments is greater than sum of anti-clockwise moments. Option B, sum of clockwise moments is less than sum of anti-clockwise moments. Option C, sum of clockwise moments is equal to sum of anti-clockwise moments. Answer D, any of these. तो मोमेंट्स का सिद्धांत क्या कहता है, तो इनमें से 4 ऑप्शन में से क्या होगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. द करेक्ट आंसर इज सी. ओके, द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सेज दैट द क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर. Calculate the distance of a point application from the force from the point P. Okay, your options are A 0.2 meter, option B 0.3 meter, option C 0.4 meter, option D 0.5 meter. Your time starts now. The correct answer is C 0.4 meter, and we have discussed this many times. You can simply apply the formula मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मोमेंट का फॉर्मूला आपने याद कर रखा है. मोमेंट जो होता है उसका जो परिभाषा है वो है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी इज पिवोटेड एट अ पॉइंट, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवोट. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स. योर ऑप्शंस आर हियर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. The correct answer is C, and these are the same questions which are being repeated. So with this we shall move on to the next question. The algebraic sum of the moments due to weight of each particle of a body about the center of gravity is option A 0, option B infinity, option C cannot be said, option D none of these. तो आपके पास एक बॉडी है, सपोज एक बॉल है, ठीक है, उस पर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो मिलकर एक बॉल बना रहा होगा. हर एक पार्टिकल की वजह से जो मोमेंट आ रहा है उन मोमेंट्स का सम क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट. ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन बी इन्फिनिटी होगा, ऑप्शन सी आप बोल नहीं सकते, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. द करेक्ट आंसर इज ए 0. सो द algebraic sum of the moments due to weight of each particle of a body about the center of gravity is 0. Let's see how. Suppose this is a ball. Its center of gravity will lie at its center. Okay,
So some particles will lie on the right hand side of the center of gravity, some particles will lie on the left hand side of the center of gravity. Okay, so the masses which lie on the right hand side will produce a clockwise moment about the center of gravity. Okay, and the masses which lie on the left hand side of the center of gravity will produce anti-clockwise moment. Okay, and those masses which are lying in line with the center of gravity, they will produce no moment. Why? Can you tell me why? Because the momentum or the distance from the center of gravity or the hinge point is going to be 0. Okay, so your net moment is going to be 0 about center of gravity. ठीक है, अगर आपके पास कोई बॉल है या फिर आप मूंग दाल की लड्डू आपने बनाई है, ठीक है, तो मूंग दाल की लड्डू, उसमें पार्टिकल्स जो हम देखते हैं दाल होता है, ठीक है, तो इस पूरे लड्डू का कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. ठीक है, तो कुछ दाल जो होंगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के राइट हैंड साइड में मिलेंगी और कुछ आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगी. तो राइट हैंड साइड का जो दाल होगा उनका मूवमेंट जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, जैसा मैंने आपको एरो के माध्यम से बताया है. और लेफ्ट हैंड साइड वाले जो दाल होंगे वो इस पूरे लड्डू को घुमाने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या रूल है? कोई भी बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ही रोटेट करता है. आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कलम को घुमाकर फेंकिए तो हमेशा वो जो कलम है किसी पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करेगा. ठीक है, वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. वैसे ही बॉल, आप बॉल को भी अगर स्पिन करके फेंकते हैं तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ही स्पिन करता. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट नेट मोमेंट जो है वो 0 होगा. दिस इज योर करेक्ट आंसर. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होल बॉडी वेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ होल वेट एट इट्स व्हाट? ऑप्शन ए सेंटर ऑफ मास, ऑप्शन बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन सी जियोमेट्रिक सेंटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट जो है वो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो सिद्धांत है वो आपको क्या बताता है? ऑप्शन ए पूरे के पूरे मास के बीचों बीच होगा, क्या वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर रहेगा? ऑप्शन सी क्या वो ज्योमेट्रिक सेंटर पर रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. द करेक्ट आंसर इज बी, center of gravity. So by the concept of center of gravity, which we mean that the whole body's mass is assumed to be a point mass. Okay, it is not distributed but it is lying at a point. Suppose you have a pen, so it has some length. Okay, but by the concept of center of gravity, we will consider that the whole mass of the pen is concentrated at certain point. That point is known as center of gravity. Likewise, we have a ball or your human body. Consider your human body also. So your human body's weight is distributed. Some part of the weight is in your head, some part on your legs, right? So it is distributed, but by the concept of center of gravity, we mean that the whole mass is concentrated at a point. Suppose, for example, suppose it is at the stomach. Okay, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सिद्धांत ये बोलता है कि आप, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप ये समझते हैं कि पूरा का पूरा जो बॉडी का जो मास है वो किसी एक बिंदु पर केंद्रित होगा, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे. जैसे आपका बॉडी भी है, कुछ आपका जो हिस्सा है वो सर है, उसका भी कुछ वज़न है, कुछ हिस्सा आपका हाथ है, आपके पैर हैं, उन सभी का कुछ ना कुछ वज़न होता है. लेकिन हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो शरीर का जो वेट है वो एक पॉइंट पर हम मान लेंगे. सपोज़ आपके पेट में, वो हमने उस पेट पर आपका जो है वो पॉइंट रहेगा जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे. ओके, योर क्वेश्चन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो कोन ऑफ हाइट h is at a distance x from the vertex where the value of x is option A h/4, option B h/3, option C 2h/3, option D 3h/4. तो एक आपका खाली कोन रखा हुआ है, जैसे कि आपका आइसक्रीम कोन होता है. उस आइसक्रीम कोन का टोटल हाइट आपको h दे रखा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस जो है वर्टेक्स से, यानी कि टिप से, जो पॉइंटेड जो निकला रहता है आइसक्रीम कोन में, वहाँ से उसका दूरी मान लीजिए x है. ठीक है,
तो आपको बताना है वो x का मान क्या है। ऑप्शन ए h/4 है, ऑप्शन बी h/3 है, ऑप्शन सी 2h/3 है, ऑप्शन डी 3h/4 है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, the correct answer is C, 2h/3. Let's see how. So here is your cone. Its total height is h. So the center of gravity lies at a distance of 2h/3 from the vertex. Okay. So vertex से जो आपकी दूरी है वो 2h/3 है. Next question is, a rigid body when acted upon by a force can have option A linear motion, option B rotational motion, option C both A and B, option C neither A or B. तो सवाल आपका ये है, कोई एक रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी मैंने आपको बता रखा है कि जो अपना शेप चेंज नहीं कर सकता, और फ्लेक्सिबल बॉडी वो होता है जिसका शेप चेंज हो सकता है, जैसे रबर बैंड। तो पूछा गया आपसे कि कोई एक रिजिड बॉडी पर फोर्स लग रहा है, उसके कारण क्या हो सकता है। उसमें लीनियर मोशन हो सकता है, उसमें रोटेशनल मोशन हो सकता है, ऑप्शन सी दोनों लीनियर और रोटेशनल हो सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The correct answer is C, both A and B. Your question is unit Newton meter of moment of force written as joule? क्या हम न्यूटन मीटर को जूल बोल सकते हैं? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी कैनॉट बी सेड, ऑप्शन डी नन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, the correct answer is B, no. Why? Because joule is the unit of work or heat, so they don't have relation. जूल जो यूनिट होता है वो हीट का होता है या फिर वर्क का यूनिट होता है, लेकिन न्यूटन मीटर जो होता है वो मोमेंट का होता है, और इनमें कोई रिलेशन ऐसा है नहीं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the sense of rotation of wheel is changed by changing the point of application of force. रोटेशन का जो सेंस बनता है, तो वो जो घूमने का जो तरीका होता है वो क्या, जहाँ हम फोर्स लगाते हैं उस पॉइंट को बदलने से क्या वो चेंज होता है। द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील इज चेंज्ड बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ऑप्शन ए विथ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑप्शन बी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑप्शन सी आइदर ए और बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। Your time starts now. Okay, the correct answer is B, without changing the direction of force. I think I have explained this before when I was telling you that the sense of rotation can be changed either by changing the point of application of force or changing the direction of application of force. So here's the explanation of the same. A spanner used to tighten or loosen a nut has a long handle to produce large moment of force. Option A, by a large force applied normally at the end of the handle. Option B, by a small force applied normally at the end of the handle. Option C, either A or B. Option D, neither A nor B. तो आपके पास एक स्पैनर है जिसे हम पाना कहते हैं हिंदी में, तो उससे हम किसी भी नट को टाइट करते हैं या ढीला करते हैं। वो हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम ज़्यादा मोमेंट हम लगा पा रहे हैं। उसका कारण क्या था, ज़्यादा मोमेंट हम क्यों लगा पा रहे हैं? ऑप्शन ए, क्योंकि हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं स्पैनर के एंड में। ऑप्शन बी, हम छोटा ही फोर्स लगा रहे हैं स्पैनर के एंड में। ऑप्शन सी, इनमें से कोई हो सकता है। ऑप्शन डी, इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, the correct answer is B. Why we use any tool? Because we need less effort, less force. So by applying the force at a large distance from the nut or at the end of the handle, we reduce the amount of force that we apply. ठीक है, तो किसी भी औजार को हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमारा काम आसान हो। हम कम फोर्स लगा के भी किसी भी चीज़ को टाइट या ढीला कर सकें। The moment of force of reaction about pivot is option A 0, option B infinity, option C either A or B, option D neither A nor B. तो सवाल ये है कि आपके पास कोई बॉडी रखा है जो कि हिंज्ड है या फिर पिवोटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि पिवोट पे भी एक रिएक्शन लगता है, तो उस रिएक्शन का मोमेंट क्या होगा। ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन बी इन्फिनिटी होगा, ऑप्शन सी 0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Okay, the correct answer is A, 0. So here is your body and it is hinged at a point A. The hinge will receive some reaction. Why? Because the gravity is pulling the body. Okay, suppose the gravity is pulling the body and the hinge is pulling it upwards. The gravity is pulling it down, but the hinge is pulling it up. What do we get from this? That there is a reaction at the hinge. ठीक है, कोई भी एक बॉडी है जिसे हमने बीच में हिंज कर रखा है, तो धरती माँ उसे नीचे खींचेगी, तो उसे ऊपर कौन रख रहा है? बैलेंस्ड है ये बॉडी। ये बॉडी अगर बैलेंस्ड है और धरती अगर इसे नीचे खींच रही है, तो ऊपर इसे कोई ना कोई खींच रहा होगा, तभी ये बैलेंस्ड है। तो ऊपर इसे वो जो हिंज है वो इसे संभाल कर रखा हुआ है। ठीक है, आप एग्जांपल देख सकते हैं, आपकी जो घड़ी लटकी हुई है दीवार पर, ठीक है, तो वो भी एक हिंज से लटकी हुई है। तो पूरा का पूरा वजन उसे नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन कांटी जो है उसे ऊपर की तरफ रखा हुआ है। ठीक है, तो कांटी उसे घुमाती क्यों नहीं है? वाई डजेंट द नेल और द हिंज ऑन द क्लॉक रोटेट द क्लॉक? वाई? द आंसर इज द बॉडी शुड रोटेट अबाउट द hinge point, but the distance from the hinge point of the reaction is 0. That's why it is not rotating. तो ये जो फोर्स है रिएक्शन का, ये इसे घुमा इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि जहाँ पे ये फोर्स लग रहा है वो हिंज पॉइंट पे ही है। तो हिंज पॉइंट से दूरी तो 0 हो गई। तो मोमेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 है, मोमेंट आर्म ही 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस ए मोशन, ऑप्शन बी लीनियर मोशन, ऑप्शन सी रोटेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एक कपल क्या प्रोड्यूस करता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी, रोटेशन। सो आई थिंक यू आर वेल अवेयर ऑफ द वर्ड कपल. सो अ कपल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रोटेट अ बॉडी. कपल शब्द आते ही आपको रोटेशन आपके दिमाग में आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्निंग ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ऑप्शन बी perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation, option C both A and B, option D none of these. तो अगर आपका कोई एक बॉडी है जो घूमना चाह रहा है, तो जो घूमने की क्षमता है वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आपके फोर्स पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी दोनों पे ही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, the correct answer is C, both A and B. So I think I have discussed this many times that moment depends upon the force as well as perpendicular distance. A single force applied on a pivoted body alone, option A, does not cause rotation of the body, option B, causes the rotation of the body, option C, does not cause linear motion of the body, option D, none of these. तो आपके पास एक pivoted body है, उस पर एक force लग रहा है, तो वो क्या करेगा? ऑप्शन ए उसे घुमा नहीं पाएगा, ऑप्शन बी उसे घुमा पाएगा, ऑप्शन सी उसे आगे की तरफ हिला नहीं सकता, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, द करेक्ट आंसर इज बी, इट कॉजेज रोटेशन ऑफ द बॉडी. सो आई थिंक वी हैव सीन दैट एग्जाम्पल. दिस इज अ बॉडी which is hinged at a point. So you have a body which is pivoted or hinged at some point A and a single force is being applied. So I think if there is a distance between pivot point and the force, this body will be able to rotate. So this force will try to rotate the body. Okay, तो आपके पास एक बॉडी है जो हिंज्ड है, सेंटर से हिंज होना यानी कि उस पर आपने मानी है कांठी लगा दिया है और उस कांठी के अबाउट ये बॉडी घूम सकता है. तो और एक फोर्स आप लगा रहे हैं, तो अगर ये हिंज पॉइंट और फोर्स के बीच में अगर थोड़ा सा भी गैप रहेगा तो ये फोर्स इसे घुमा सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस, ऑप्शन ए लीनियर मोशन, ऑप्शन बी रोटेशन, ऑप्शन सी ऑक्सिलरी मोशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. द करेक्ट आंसर इज बी, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस, ऑप्शन ए लीनियर मोशन, option B rotation,
ऑप्शन सी ऑक्सीलरेटरी मोशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके पास दो फोर्सेस हैं और ऑपोजिट नेचर के हैं, एक ऊपर लग रहा है तो एक नीचे लग रहा है। किसी भी बॉडी पर अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या नहीं कर सकता? ऑप्शन ए उसे लीनियर मोशन नहीं दे सकता, ऑप्शन बी उसे रोटेशन नहीं दे सकता, ऑप्शन सी उसे ऑक्सीलरेटरी मोशन नहीं दे सकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, the correct answer is A, linear motion. Why? Because if the body is acted by two forces of equal nature and opposite nature, it cannot move. Okay, because net force is 0. But can it rotate? Yes. Yes, it can rotate. Why? I think you have seen the couple, right? In what happens in a couple? Two equal and opposite forces, but they are applied at different points. So this will cause the body to rotate, but that body cannot move in a linear way. Why? Because net force is 0. Net upward force is equal to net downward force. तो नेट फोर्स तो आपका 0 हो सकता है, लेकिन नेट मोमेंट आपका हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम, योर ऑप्शंस आर ए बी सी डी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The correct answer is A. A solid body can be balanced by supporting it at its what? Option A, geometric center, option B, midpoint, option C, center of gravity, option D, none of these. Your time starts now. The correct answer is C, center of gravity. Okay, a body can be balanced by supporting it at center of gravity. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया है। किसी बॉडी को अगर बैलेंस करना है, सपोज आपके पास एक पेन ही रखा हुआ है, तो पेन को अगर आपको बैलेंस करना अपनी उंगलियों पे, तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उसे सपोर्ट देना पड़ेगा। फॉर अ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी ऑप्शन ए एज हाई एज पॉसिबल, ऑप्शन बी एट इट्स सेंटर, ऑप्शन सी एज लो एज पॉसिबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होना चाहिए? कोई भी बॉडी में, सपोज आपका चेयर ही क्यों ना हो, तो उस चेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहना चाहिए? ऑप्शन ए जितना हाई हो सके उतना हाई, ऑप्शन बी बीचों बीच होना चाहिए आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन सी जितना नीचा हो सके उतना अच्छा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द करेक्ट आंसर इज सी, एज लो एज पॉसिबल। वाई? बिकॉज if your center of gravity is lying near the ground, it will avoid the rotation of the body. Okay, so I think you have many examples. When you climb on your chair, so if the chair is very heavy at the bottom, you have less possibility for it to topple. Okay, तो आपके पास एक चेयर है जिस पर आप खड़ा होना चाह रहे हैं, तो चेयर अगर नीचे से बहुत भारी है तो वो कम चांस है कि आप उस पर गिरें, लेकिन वही अगर चेयर बड़ा हल्का है और उसका नीचे बड़ा हल्का है और ऊपर बड़ा भारी है, तो इसमें चांस बढ़ जाता है कि आपका चेयर जो है वो घूम जाए। फॉर द व्हीकल टू बी स्टेबल, द मैक्सिमम मास शुड लाई नियर टू द रोड। ओके, दूसरा एग्जांपल आपका जैसे कार हो गया, तो कार का हम ये कोशिश करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचा हो सके उतना ही कार आपका बैलेंस होगा, वरना क्या होगा कि अगर कार बहुत स्पीड जा रहा है और आप उसे घुमाने की कोशिश करें तो कार जो है वो पलट जाएगा। फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी ऑप्शन ए अबव द बेस, ऑप्शन बी नियर द जियोमेट्रिक सेंटर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होना चाहिए? बेस के ऊपर, ज्योमेट्रिक सेंटर के पास, सी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। ओके, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई अबव द बेस, बट इट शुड बी नियर द ज्योमेट्रिक center. Next question is, the magnitude of moment of force is directly proportional to the option A magnitude of applied force, option B perpendicular distance between point of application of force and the turning point or axis, option C both A and B, option D neither A nor B.
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Answer is C. That's a repeated question. Next question is, two equal and unlike parallel forces with lines of action which are not in the same line constitute a, option A, couple, option B, moment of force, option C, moment of couple, option D, none of these. दो बराबर के लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस के जो फोर्सेस होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, दो अलग अलग लाइन्स ऑफ एक्शन हैं, तो उनमें क्या बनता है? ऑप्शन ए कपल, ऑप्शन बी मोमेंट ऑफ फोर्स, ऑप्शन सी मोमेंट ऑफ कपल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. द करेक्ट आंसर इज ए कपल. ओके, सो आई थिंक यू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ कपल. तो आपको कपल का डेफिनेशन अगर याद है तो आप ये सवाल कर ले जाएंगे. So the explanation is like this: two equal and opposite forces, okay, equal magnitude but opposite in direction, they form a couple. Next question is, the perpendicular distance between two equal and unlike parallel forces which constitutes a couple is called, option A, side of a couple, option B, arm of a couple, option C, arm of the force, option D, none of these. तो कपल में जो दो फोर्सेस होते हैं उनके बीच का जो दूरी होता है उसे हम क्या कहते हैं? Side of couple, arm of the couple, arm of the force, option D, none of these. Your time starts now. The correct answer is arm of couple. The turning effect of a couple around a fixed point or axis is called, option A, moment of force, option B, moment of couple, option C, either A or B, option D, neither A nor B. एक कपल की जो घुमाने की क्षमता है किसी भी एक पॉइंट ऑफ एक्सिस के अबाउट, उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं, ए या बी दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. द करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग अ टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू कपल, सो इट विल बी अ मोमेंट ऑफ कपल. इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मोमेंट ड्यू टू फोर्सेस देन यू वुड हैव कॉल्ड इट मोमेंट ऑफ फोर्स. तो यहाँ पे चूँकि कपल जो है, चूँकि यहाँ पर मोमेंट जो है वो कपल के द्वारा बनाया जा रहा था, इसीलिए हम मोमेंट ऑफ कपल कह रहे हैं. यही चीज़ अगर टर्निंग इफेक्ट फोर्स के द्वारा दिया जाता तो उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना इज सिचुएटेड एट, ऑप्शन ए, एट इट्स सेंटर, ऑप्शन बी, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ऑप्शन सी, मिड पॉइंट ऑफ वर्टिकल एक्सिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. एक ट्रायंगुलर प्लेट कहेंगे, बहुत ही पतला प्लेट को हम लोग लैमिना कहते हैं. जैसे कि पत्ता होता है, पेड़ का जो पत्ता होता है उसे हम लैमिना कह सकते हैं. तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ स्थित रहता है? ऑप्शन ए, उसके बीचों बीच, ऑप्शन बी, अगर हम उसके मीडियंस को बनाएं तो मीडियंस एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. ऑप्शन सी, एक वर्टिकल एक्सिस हम खींचें उसका जो बीचों बीच पॉइंट होगा उसे कहेंगे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Your correct answer is B, the point of intersection of medians. So there are a few questions which you must learn. For example, this is about triangular lamina. So it may happen that question may come on rectangular lamina as well. So you need to learn how the centers of gravity are found in triangular lamina or rectangular lamina. Okay. So for this the answer is B. तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका रेक्टेंगुलर के साथ भी आ सकता है. रेक्टेंगुलर केस में जो होता है वो डायगोनल का इंटरसेक्शन होता है. यहाँ पर ट्रायंगुलर लैमिना के केस में अगर आप मीडियन बनाते हैं, आपको पता है 3 मीडियंस आप खींच सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो मीडियंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना इज सिचुएटेड एट, ऑप्शन ए, एट इट्स सेंटर, ऑप्शन बी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ऑप्शन सी, आइदर ए और बी, ऑप्शन डी, नाइदर ए नॉर बी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. The correct answer is B, the point of intersection of diagonals. So I have said that you must remember all these things. आपको ये चीज़ याद होना चाहिए. Next question is, calculate the length of arm of couple if force of 13 Newton produces a moment couple of 14.3 Newton meter. The options are in front of you. आपको इसमें
कपल का आर्म का जो लेंथ है वो आपको निकालना है। आपको फोर्स दे रखा है 13 न्यूटन और कपल का मान दे रखा है 14.3 न्यूटन मीटर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, the correct answer is D, 1.1 meter. I think you can divide and get the answer. Next question is, at each point of circular path the centripetal force is directed. Option A away from the center, option B towards the center, option C either A or B, option D neither A nor B. सेंट्रीपिटल फोर्स का जो दिशा है वो कहाँ पर हमेशा दिखाया जाता है? ऑप्शन ए सेंटर से बाहर, ऑप्शन बी सेंटर की तरफ, ऑप्शन सी ए और बी में से कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द करेक्ट आंसर इज बी, टुवर्ड्स द सेंटर। हियर इज द डायग्राम, आई हैव शोन दिस बिफोर। पहले भी आपको ये दिखा चुका हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ द फोर्स इज नीडेड विच एक्ट्स एज, ऑप्शन ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन सी आइदर ए और बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो कौन सा ऐसा बल है जो उसे घूमने में मदद करता है? क्या वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, या ऑप्शन सी ऑप्शन बी में से कुछ एक होगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करेक्ट आंसर इज ए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the moon revolving around the earth is in static equilibrium, dynamic equilibrium, neutral equilibrium or none of these. चांद जब अर्थ का चक्कर लगाता है तो उसको किस इक्विलिब्रियम में रहता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहता है, या इनमें से कोई भी नहीं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द करेक्ट आंसर इज बी. As I have said in the definition of equilibrium, since moon is moving, it is in dynamic equilibrium. Okay, example of static equilibrium is, suppose the pen kept on your table, and moon is in dynamic equilibrium because it is moving. Net force on moon is 0 and net moment is on the moon is also 0. Next question is, the turning effect of the body about an axis is due to, option A moment of force applied on the body, option B torque applied on the body, option C either A or B, option D neither A nor B. तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है अपने एक्सिस के अबाउट घूमता है, उसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए मोमेंट ऑफ फोर्स हो सकता है, ऑप्शन बी टॉर्क की वजह से वो घूम सकता है, ए और बी में से कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The correct answer is C, either A or B. So a body can rotate either due to moment of force or due to torque applied on the body. तो इनमें से दोनों ही आपका आंसर हो सकता है। फोर्स की वजह से जो मोमेंट लगता है वो भी उसे घूमने की क्षमता प्रदान करता है, और उस पर अगर हम टॉर्क लगाते हैं तो भी उसे घूमने की क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन एज ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ऑप्शन सी आइदर ए और बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो घड़ी के विपरीत में अगर मोमेंट लग रहा है उसे हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं? सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द करेक्ट आंसर इज ए पॉजिटिव। These things they need to be memorized. I think sign conventions can be changed, but for your syllabus I think anti-clockwise moment to be positive can be taken as positive. Okay, but sign conventions change with books, with authors. तो यहाँ पर घड़ी का विपरीत दिशा में जो मोमेंट लग रहा है इसे हम पॉजिटिव मान लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बदलती हैं लेखक के वजह से, या फिर किन्हीं किताबों में ये अलग भी हो सकता है, लेकिन आप इसे पॉजिटिव मानकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन एज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द करेक्ट आंसर इज नेगेटिव, opposite to that of what we learned in the previous question. Actually the rotation is produced by option A single force, option B pair of forces, option C either A or B, option D neither A nor B. Your time starts now. The correct answer is B, pair of forces. Okay,
if you apply a single force it may give it a linear motion, but if you have a pair of forces it actually causes the body to rotate. ठीक है, एक अगर फोर्स लगता है जो ऑप्शन ए में है वो सिर्फ उसे लीनियर मोशन दे सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन बी पेयर ऑफ फोर्सेस हैं तो वो हमेशा उसे घुमा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम if the algebraic sum of the moments of all the forces acting on the body about the axis of rotation is option A a positive value, option B a negative value, option C 0, option D none of these. Your time starts now. The correct answer is C 0. So I think we have discussed this, that in equilibrium net forces must be 0 and the net moments must also be 0. इक्विलिब्रियम का यही परिभाषा है कि पूरा जो बल है उनका जोड़ शून्य होना चाहिए और मोमेंट्स का भी जोड़ है उसे 0 होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स ऑफ 5 to 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 420 न्यूटन मीटर. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड टर्निंग पॉइंट इज ऑप्शन ए 0.5 मीटर, ऑप्शन बी 0.8 मीटर, ऑप्शन सी 0.9 मीटर, ऑप्शन डी 1.2 मीटर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, the correct answer is B 0.8 meter. You need to follow the equation and you will get the answer. अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप ये सवाल कर ले जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी सच दैट मोमेंट ऑफ कपल इज 12 न्यूटन मीटर, द आर्म ऑफ कपल इज. तो इस सवाल में आपको कपल का आर्म का लेंथ आपको निकालना है. योर ऑप्शंस आर गिवन हियर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, the correct answer is C. I think it's also repeated question. You have to apply the formula. I think the question is based on the similar concepts that we have discussed in the previous questions. So we shall move on to the next question. The position of center of gravity of a body of a given mass depends on its option A shape, option B distribution of the particles, option C either A or B, option D none of these. Center of gravity किस हिस्से में रहेगा वो किस पर निर्भर करता है, शेप पर निर्भर करता है या कैसे उसका मास फैला हुआ है उस बॉडी में उस पर निर्भर करता है. ऑप्शन सी इनमें से दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. योर करेक्ट आंसर इज सी आइदर ए और बी. आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन बिफोर. इस सवाल को हमने पहले भी देख रखा है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक रेक्टेंगल है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बीचों बीच होता है. अगर उसे हम मोड़कर एक आर्क बना देते हैं, यानी कि उसका जब हम शेप चेंज कर देते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो लोकेशन है वो चेंज हो जाता है. दूसरा हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल. ठीक है, हो सकता है कोई एक रेक्टेंगल है, उसमें एक कोने पर वेट बड़ा कम है, ठीक है, और दूसरे कोने पर उसका वेट ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बीचों बीच में अब नहीं रहेगा, वो ज़्यादा वजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, ऑप्शन ए इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल, ऑप्शन बी इट मस्ट बी अबव द बेस एंड नियर द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो यह स्टेबल इक्विलिब्रियम पर सवाल है. स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर स्थित होना चाहिए. पहला ऑप्शन है जितना नीचे हो सके उतना अच्छा है, यानी कि ज़मीन के पास. ऑप्शन बी वो ज़मीन से ज़रा सा ऊपर और ज्योमेट्रिक सेंटर के पास स्थित होना चाहिए. ऑप्शन सी इनमें से कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, द करेक्ट आंसर इज सी. Because for the stable equilibrium, the center of gravity must be as low as possible. It should be near to the ground, but at the same time, option B, it should be between the geometric center and the base. Okay. So should there be an unstable equilibrium also? Yes. If the center of gravity lies above the geometric center, then it will be an unstable equilibrium. तो stable equilibrium का ये condition है कि वो जितना धरती के पास हो उतना बढ़िया है,
और एक और टर्म है जिसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के सेंटर से, ज्योमेट्रिक सेंटर से थोड़ा सा ऊपर रहे। ठीक है, विद दिस वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ऑप्शन ए स्पीड इज कांस्टेंट, ऑप्शन बी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन इज 0, ऑप्शन डी नॉन ऑल ऑफ दीज। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो, ऑप्शन बी जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ऑप्शन सी जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The correct answer is D, all of these. So uniform linear motion means speed must be constant, velocity must also be constant, and acceleration must be 0. Okay, so I think with this we come to an end of this session. Hope you learned a lot of concepts. All the best for your examinations. Thank you.